Question number 31, limitation of algorithm power of design and analysis of algorithm. Lower bound and an estimate on a minimum amount of work needed to solve a given problem. Examples: number of comparisons needed to find the largest element in a set of n elements, and number of comparisons needed to sort an array of element n, and number of comparisons necessary for searching in a sorted array, and number of multiplication needed to multiply by n matrix. So these are the examples where we have the need of lower bound, because lower bound होगा तो amount of work minimize हो जाएगा. ठीक है, उसमें हमारे पहले एग्जांपल हमने ये है कि कोई लार्जेस्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है n नंबर से, तो उसका क्या सबसे लेस मेथड कंपैरिजंस करने का क्या हो सकता है. ठीक है, या फिर नंबर ऑफ कंपैरिजन उस सूरत में आप लेस करें जब अपने एरे को सॉर्ट करना हो, या नंबर ऑफ कंपैरिजन आपने तब जब एक सॉर्टेड एरे में आपने सर्चिंग करनी हो, या आपने n क्रॉस n मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो. तो इन सारे सिचुएशंस में हमें लोअर बाउंड जो है वो हमारे मिनिमाइज वर्क करने के काम आता है. लोअर बाउंड कैन बी एन एग्जैक्ट काउंट or an efficient class which belongs to omega. Omega, you know already that this is the class which deals with the lower bounds. And another term is tied lower bound. There exists an algorithm with the same efficiency as the lower bound. Problems, these are the problems, and we have the lower bound and tiedness. ठीक है, अगर हमें sorting करनी हो comparison base, तो we can do in a omega n log of n, and tiedness इसको हम कहेंगे कि yes it belong to tied lower bound. If we searching in a sorted array, we have the efficiency of lower bound in terms of omega log of n. Yes, this is fall in a tied lower bound. Unique element, element uniqueness, we can fall in a omega n log of n, and it is in a tied bound, lower bound. And digit integer multiplication, omega n, tiedness not known. And multiplication of n cross n matrices, omega n square, unknown. So these are the way where we see that the lower bound is very much important. Or tied lower bound can be have the same efficiency. These are the methods for establish lower bound: trivial lower bounds, information theoretical argument, decision trees, adversary arguments, and problem reduction. So these are 4 methods for establishing lower bound. Trivial lower bounds. Trivial lower bounds based on the counting that the number of items that must be processed in input and generate an output. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है. एग्जाम्पल इसमें ये है कि हमें मैक्सिमम फाइंडिंग मैक्सिमम आइटम चाहिए हो तो n स्टेप्स और n/2 कंपैरिजंस वी नीड दैट. पॉलिनोमियल एवल्यूशंस करनी हो, सॉर्टिंग, एलिमेंट यूनिकनेस है, या हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्टेंस है. तो इन सारी एग्जांपल्स में आपको ट्रिवियल लोअर बाउंड्स जो है वो आउटपुट जनरेट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं. Conclusion क्या है? May and may not be useful, and be careful in deciding how many elements must be processed. This is decision tree. Second method, decision tree, a convenient model of algorithm involving comparison in which internal node represent comparisons and leaf represents outcome. Decision node for 3 elements in insertion sort. इंसर्शन सॉर्ट के 3 एलिमेंट्स को अगर हम जहन में रखें कि A, B एंड C है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज दैट कि A लेस देन B. अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है A, B, C, और हमारे पास कंडीशन ये है कि A लेस देन B, सो वी हैव 2 आउटकम्स, येस एंड नो. कंडीशन ट्रू होगी तो हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो हमने राइट साइड पे मूव करना. सपोज इफ यू गो फॉर द लेफ्ट साइड, यानी कंडीशन ट्रू हो गई है कि यानी A लेस देन B है, तो फिर नेक्स्ट कंडीशन ये है कि हमें
ये चेक करना है कि अगर ए लेस देन बी है तो क्या लेस देन सी भी है, ठीक है। अगर ये येस हो जाता है, ए लेस देन बी है, तो वी गो फॉर द कंडीशन बी लेस देन सी। अगर बी लेस देन सी हो जाता है तो इसके लिए भी हमारे आगे दो फर्दर कंडीशंस हैं, येस एंड नो भी। अगर ए भी लेस देन बी है और बी लेस देन सी है तो ठीक है भाई, हम येस करेंगे और एक हमारे पास आउटकम आएगा जिसका रिजल्ट ये होगा कि ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, ठीक है। तो ये हमारा उस 3 एलिमेंट्स के बारे में डिसीजन ये फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है और वो बी लेस देन सी नहीं है तो वी हैव अनदर आउटकम नो, विच इज़ दैट कि ए इज़ लेस देन सी, यानी बी से लेस नहीं है तो क्या सी से लेस है या नहीं। देन वी हैव टू आउटकम्स येस एंड नो। येस के केस में हमारे पास एक डिसीजन मेड हो जाएगा कि ए इज लेस देन सी, ठीक है, एंड सी इज लेस देन बी, ठीक है। और अगर नो होगा तो वी हैव अनदर ऑप्शन दैट सी इज लेस देन ए एंड देन सी इज लेस देन ए एंड बी ऑल्सो। सो इफ वी गो अनदर फॉर कि अगर ए ही लेस देन बी नो में आ जाए तो हम राइट साइड पे जाएंगे और फिर हम ये चेक करेंगे कि अगर बी जो है वो ए से लेस नहीं है तो क्या ए सी से लेस है। तो अगर ए भी सी से लेस होगा तो वी हैव ए आउटकम यस बी लेस देन ए एंड ए लेस देन सी। सो ये हमारा एक आउटकम आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा ये नहीं होता, फॉल्स हो जाता है, तो नो के केस में वी गो फॉर अनदर कंडीशन के बी लेस देन सी। अगर ये यस आ जाता है तो वी आउटकम दैट कि बी लेस देन सी एंड देन सी लेस देन ए। और अगर नो केस हो जाएगा तो फिर उस केस में हमारा दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि सी लेस देन बी एंड बी लेस देन ए। ये एक डिसीजन आइटम्स हैं कि अगर हम मुख्तलिफ आइटम्स लेकर उसे चेक करने की कोशिश करें। सपोज अगर हमारे पास 1 2 और 3 है, ठीक है, 1 2 3 है और इसको हम इस पर चलाने की कोशिश करें तो पहली कंडीशन आइटम अगर हमारे पास 1 जो है वो ए में है, 2 बी में है और 3 सी में है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ए लेस देन बी हो जाएगा, तो हम राइट साइड पे मूव करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि बी लेस देन सी है, नहीं बी तो 2 है और 3 जो है वो 3 सी में है, तो 2 लेस देन सी अगेन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और अगेन हम इस वाले फॉल में आ जाएंगे कि यस 1 2 3 बी सारे एक दूसरे से लेस हैं क्योंकि हमने 1 2 3 लिया था, ठीक है। तो ये इस मेथड के थ्रू हम डिफरेंट ऑप्शंस पुट करके इस डिसीजन ट्री से आंसर्स या उसका नंबर ऑफ कंपैरिजन के बेस पे ले सकते हैं। डिसीजन ट्री एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। Any comparison-based sorting algorithms can be represented by a decision tree for each fixed value n. Number of leaves are considered as output, which is greater than or equal to n factorial. Height of binary tree with n factorial is greater than or equal to n base 2n factorial. Okay. The minimum number of comparison in a worst case is greater than or equal to log of 2 फैक्टोरियल। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कंपैरिजन जो भी होंगे वर्स्ट केस में वो log बेस 2n फैक्टोरियल से आपके पास जो है वो इससे लेस ही होंगे। फॉर एनी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सिंस द लॉन्गेस्ट पाथ रिप्रेजेंट द वर्स्ट केस एंड इट्स लेंथ इज द हाइट। सो मैक्सिमम अगर आप मर्ज सॉर्ट देख लें, हीप सॉर्ट देख लें, तो हम ये कह सकते हैं कि log बेस 2n फैक्टोरियल इज अप्रॉक्सिमेट इक्वल्स टू n log of n, ठीक है। and this lower bound is tight like in merge sort and quicksort. So example इसकी क्या हो सकती है कि prove that 5 or 7 comparisons are necessary and sufficient for sorting 4 keys और 5 keys respectively, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल हो सकती है कि आप इसमें नेसेसरी कर दें कि इतने कंपैरिजन्स होंगे तो आपके पास जो है वो सफिशेंट होंगे उसको प्रूव करने के लिए या उसको सॉर्ट करने के लिए। एडवर्सरी आर्गुमेंट्स। एडवर्सरी आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? इसमें यह होता है कि इट्स अ गेम बिटवीन द एडवर्सरी एंड द अननोन एल्गोरिथम। द एडवर्सरी हैज़ द इनपुट एंड द एल्गोरिथम आस्क क्वेश्चन टू द एडवर्सरी अबाउट द इनपुट्स, ठीक है। ये हमारे पास एक एडवर्सरी है जिसके पास कोई एल्गोरिथम है
तो वो क्या होगा, इनपुट ये है कि वो उसके क्वेश्चंस करेगा या उसे गैस करने की कोशिश करेगा. द एडवर्सरी ट्राइज टू मेक द एल्गोरिथम वर्क द हार्डेस्ट बाय एडजस्टिंग द इनपुट, और वो उसको इनपुट को एडजस्ट कर सके कंसिस्टेंसी. It wins the game after the lower bound time, lower bound proval if it able to come up with the two different inputs. इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है कि guessing a number between 1 and n using yes no questions. If it is greater than x, adversary क्या होगा, put the number in a largest of two subset generated by last questions. ठीक है. एंड एग्जांपल 2 है merging two sorting list of n. ठीक है, जैसे हम सॉर्ट में करते हैं, एक हमारे पास ए लिस्ट है और एक हमारे पास बी लिस्ट है. तो एडवर्सरी क्या होगा कि तो ऑर्डरिंग के बी लेस देन A1 हो, फिर लेस देन B2 जो है वो लेस देन A2 हो, और इस तरह से करते करते हम सारे चीज़ों को इन माइंड रखें और आंसर कंपैरिजन कंसिस्टेंसी. क्लेम क्या होगा कि any algorithm require at least 2n-1 comparison to output the above ordering because it has to compare each pair of adjacent element in the ordering. Example क्या हो सकती है इसकी कि design an adversary to prove that finding the smallest element in set of n elements requires at least n-1 comparisons. ठीक है, तो हम ये करते रहते हैं. एरे के अंदर से हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी हो और वो अगर आपके पास लास्ट लोकेशन पे हो तो एटलीस्ट आपको n-1 कंपैरिजंस करने पड़ते हैं. दिस इज अनदर मेथड लोअर बाउंड बाय प्रॉब्लम रिडक्शन. फैक्ट क्या है, इफ ए प्रॉब्लम q, एक बिग प्रॉब्लम है q, इज रिड्यूस कैन बी रिड्यूस टू अ प्रॉब्लम p, कि उसको एक स्मॉल पोर्शन p में रिड्यूस कर लें, so then q is at least as easy as p or equivalent to p, and p is as hard as q. So this is the fact. ठीक है, कि अगर एक बिग प्रॉब्लम है, जैसे आप हैमिल्टोनियन सर्किट कैलकुलेट करते हैं किसी ग्राफ में और आपके पास 6-7 जो है वो रूट्स बन रहे हैं, तो अगर आप उसका एक स्मॉल पोर्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो भी उतना ही मुश्किल है जितना उसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स हैं या टूवर्ड्स हैं. रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन फ्रॉम Q to P का क्या मतलब है कि डिज़ाइन एन एल्गोरिथम फ्रॉम Q यूजिंग एन एल्गोरिथम फॉर P एज एन सब रूटीन, यानी P जो है उसका सब रूटीन होगा. इसी तरह भी आप कैनएप कर सकें डायनेमिक प्रोग्रामिंग से. तो आपने देखा कि हमने उस प्रॉब्लम को जो कि इंस्टेंट बेस थी उसको वेरी स्मॉल इंडेक्स से करके हमने उसको सॉल्व कर लिया. आइडिया क्या है कि इफ़ प्रॉब्लम P is at least as hard as problem Q, then a lower bound for Q is also a lower bound of P. Hence, find problem Q with known lower bound that can be reduced to problem P in question. Example क्या है, P is finding MST minimum spanning tree for n points in Cartesian plane, and Q is the element unique problem known as in the omega n log of n में सॉल्व हो सकते हैं. इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, रिडक्शन फ्रॉम Q to P के एक हमारे पास सपोज गिवन ए सेट है, ठीक है, जिसमें वैल्यूज़ हैं x1 से लेकर xn तक of number, and instead of uniqueness problem we form an instead of MST in the Cartesian plane y, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हम सेट बनाना शुरू करते हैं फ्रॉम 0 से x1 to up to 0 से xn तक. Then form an MST for y. We can easily linear time determine the element in x are unique. या उसको सारों के साथ कंपेयर करते हैं और फिर हम एक फॉर्म बना देते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है 0 ये सबसे यूनिक है, या ये x एलिमेंट जो है ये सबसे यूनिक है. क्लासिफाइंग प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी. प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हमने क्लासीफाई करना हो तो इफ़ द प्रॉब्लम इज ट्रैकेबल सच एज देयर ए पॉलीमर टाइम में बिग ऑफ पी ऑफ एन सॉल्व होता हो एल्गोरिथम दैट सॉल्व इट, पॉसिबल आंसर क्या होगा कि यस गिवन एग्जांपल पॉलीनॉमियल टाइम एल्गोरिथम. ठीक है, पॉसिबल आंसर ये है. लेकिन अगर नो है तो बिकॉज इट हैज़ प्रूव दैट नो एल्गोरिथम एग्जिस्ट्स एट ऑल like turning halting problem, जैसे halt हो गया, because it been proved that any algorithm for it would be required exponential time.
अननोन। तीसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि वो अननोन है, यानी ये कि तीनों ये पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, येस हो सकता है, नो हो सकता है और अननोन। हाउ टू क्लासीफाई द रिलेटिव कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग रिडक्शन। तो इन तीनों आंसर में से कोई भी पॉसिबल आंसर हो सकता है जब हम क्लासीफाई करते हैं प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी को। जी, एक और प्रॉब्लम हो सकती है प्रॉब्लम टाइप ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम फाइंड ए सोल्यूशन दैट मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज सम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, इसमें हम ब्रांच एंड बाउंड कर चुके हैं और आपको पता है कि मैक्सिमाइज क्या करना होता है और मिनिमाइज क्या होता है। मिनिमाइज में हम लोअर बाउंड कैलकुलेट करते हैं और मैक्सिमाइज में हम अपर बाउंड कैलकुलेट करते हैं। एंड डिसीजन प्रॉब्लम आंसर येस नो टू ए क्वेश्चन। मैनी प्रॉब्लम्स हैव ए डिसीजन एंड ऑप्टिमाइज वर्जन्स। For example, traveling salesman person, optimization क्या है, find Hamiltonian circle of minimum length. Decision क्या है, find Hamiltonian cycle of length less than n, यानी कोई हम पैरामीटर सेट कर दें। Decision problems are more convenient for formal investigation of their complexity. So this is the optimization and decision problems types. क्लास P इज द पॉसिबल सोल्यूशन। P मतलब पॉसिबल है, उसका रिजल्ट हो सकता है। P के द क्लास ऑफ द डिसीजन प्रॉब्लम दैट आर सॉल्वेबल, या वो सॉल्व हो सकती हैं बिकॉज P ऑफ n टाइम, वेयर P ऑफ n इज द पॉलिनोमियल ऑफ प्रॉब्लम इनपुट साइज n। ठीक है, तो वो उसका सोल्यूशन पॉसिबल है, लाइक सर्चिंग, एलिमेंट यूनिकनेस, ग्राफ कनेक्टिविटी, ग्राफ एसाइक्लिसिटी एंड प्राइमरी टेस्टिंग। तो सर्चिंग आपने बहुत से एल्गोरिथम्स में की है, जैसे बाइनरी सर्च है आपके पास से, इसी तरह से आपके पास लीनियर सर्च है। एलिमेंट यूनिकनेस भी आप दो लूप्स लगा के चेक करते हैं, एक कोई एलिमेंट आपने चेक करना हो कि वो यूनिक है या नहीं है। ग्राफ कनेक्टिविटी आपने रजिस्ट्रा की है, फिर एमएसटी के दो एल्गोरिथम है, प्रिम प्रेस्कल हैं। तो ये सारे जो है हमारे पास क्लास ऑफ पी में आते हैं। क्लास NP नॉट पॉसिबल सोल्यूशन या नॉट डेमोस्ट्रिक पॉलिनोमियल सोल्यूशन। P जो होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल। क्लास ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम whose proposed solution can be verified in polynomial time equal to solvable by non-deterministic polynomial algorithms. A non-deterministic polynomial algorithm is an abstract two-stage procedures that first one क्या है, generate a solution of the problem or some input by guessing. दूसरा ये check whether the solution is correct in polynomial time. By definition, it solve the problem if it capable of generating and verify a solution on one of its try. Why this definition led to deployment of rich theory called computational complexity. ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन डेमोस्टिक है कि हम एक उसका सोल्यूशन बनाएं, फिर उसको जो गैस किया है और फिर हम उसको देखें कि वो सोल्यूशन हमारा जो है वो करेक्ट है और पॉलिनोमियल टाइम में हो सकता है या नहीं हो सकता। जी, एग्जांपल है CNF सेटिस्फैक्टरी। CNF क्या है हमारे पास, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। प्रूफ क्या है कि इफ ए बूलियन एक्सप्रेशन इज conjunctive normal form satisfiable, such as are there these values its variable that make it true. This problem is NP या non-deterministic polynomial non-deterministic algorithm. Guess a true assignment, substitute the value into the CNF formula to see if that variable is true. For example, ये हमारे पास एक इनपुट है, ठीक है, और इसको हमें चेक करना है डिफरेंट फेसेस पे, ABC की डिफरेंट जो है बाइनरी की वैल्यूज पे कि ये ट्रू है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए जो हमें फेस के लिए टाइम लगेगा वो हमारे पास एग्जांपल क्या है, A, फिर मॉड ऑफ B नॉट, फिर नॉट C, ये हमारा एंड A B नॉट एंड नॉट B नॉट D और E एंड, यानी एंड ये सारे के सारे बीच में एंड लगे हुए, 1 2 3 और आखिर में एक और है हमारे पास नॉट D एंड नॉट E। ठीक है, तो ट्रू असाइनमेंट जो है इसमें हमारे पास सारे जीरोस रिजल्ट कर सकते हैं, सारे ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी एग्जाम्पल की हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं और चेक फेस हमारा ये कि हमारे पास बिग ऑफ n में रिजल्ट दे देगा।
कुछ और प्रॉब्लम है, बट अदर आर प्रॉब्लम दैट इज़ नॉन पी। उसके अंदर हमारे पास हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्टेंस है, पार्टीशन प्रॉब्लम है, it is possible to participate in integers into two disjoint subset with the same sum। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा ये हो सकता है डिसीजन वर्जन ऑफ TSP, ट्रैवलिंग सेलमैन पर्सन, इनएब्सर प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग एंड मैनी अदर कम्बिनेशनल जो ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम है वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, नॉन डिटरमिनिस्टिक प्रॉब्लम में। ऑल द प्रॉब्लम in P can be solved in a manner but no guessing is necessary। So we can say P is a subset of belongs to NP। big billion dollar question that P equals to NP, which is not possible। लेकिन can it will be NP complete problem। A decision problem D is NP complete if it is hard as many problem in NP। D जो है हमारे पास एक डिसीजन प्रॉब्लम है, whether D is in an NP, every problem in NP is polynomial time reducible to D। हम कह रहे हैं कि बहुत बिग प्रॉब्लम का एक छोटा सा पोर्शन हम ले रहे हैं कि वो प्रॉब्लम अगर ट्रू होता है तो बाकी सब भी ट्रू हो सकते हैं। तो ये अजम्पशन होती है कि जैसे हमने ट्रैवलिंग सेलमैन पर्सन का एक सोल्यूशन ढूंढा तो हमने कहा कि उसके अंदर बाकी सोल्यूशंस भी सॉल्व हो सकते हैं। So other NP complete problems, NP problem obtained through polynomial time reduction form unknown NP complete problem। यानी हमें अगर उसका आंसर नहीं भी पता तो हम रिडक्शन करते हुए उसका आंसर सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि हम नॉन जो है वो एक कैंडिडेट जो कि अननोन है उससे सॉल्व करते करते हम नॉन प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल TSP, किनेप्सैक, पार्टीशन, ग्राफ कलरिंग, हार्डनेस ऑफ कल, अदर प्रॉब्लम ऑफ कम्बिनेशन नेचर, यानी हम मुख्तलिफ कम्बिनेशन चेक करते चले जाते हैं और फिर हम उनमें से कोई एक हमारा ट्रू हो जाता है। P equals to P dilemma revisited। तो P equals to NP would imply that every problem in NP include all NP complete problems could be solved in polynomial time। If a polynomial time algorithm for just one NP complete problem is discovered, then every problem in NP can be solved in polynomial time। ये हमारी assumption है कि अगर वो एक P जो है वो polynomial time में सॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब ये कि उसके टोटल जो है वो हमारे पास P equals to NP हो सकता है। बट ये हमारे पास क्या हो सकता है, डॉट फॉल और रिसर्च बिलीवर्स दैट, क्योंकि बहुत सी जगहों पे P नॉट इक्वल टू NP है। P इज एन प्रॉपर सबसेट ऑफ NP। इफ NP does not equal to NP then the NP complete problem or not NP, although many of them are very useful in practice। like आपके नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बहुत से ऐसे सबसेट्स बन जाते हैं जिसका वेट जो होता है वो मैक्सिमम वेट से ग्रेटर होता है, लेकिन वो फिर क्या होता है, फिजिकल सोल्यूशन नहीं रहते। ठीक है, और जबकि बहुत से ऐसे सबसेट होंगे जो हमारे पास फिजिबल सोल्यूशंस में रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक डिस्कशन है कि हम एक प्रॉब्लम से टोटल प्रॉब्लम के बारे में अजम्पशंस लगा सकें।